ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 3 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, PPSC, ਪੰਜਾਬ PCS, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ, CHSL ਐਗਜ਼ਾਮ, CGL ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ SSC ਦੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, WhatsApp, Telegram, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, PSCB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, PCS ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਟੂ ਓਨਰ ਡਾਕਟਰ BC ਰੋਏ। ਡਾਕਟਰ BC ਰੋਏ ਜੀ ਨੂੰ ਓਨਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ BC ਰੋਏ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਸਨ ਦਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੋਰਮਰ RBI ਗਵਰਨਰ, RBI ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਰਨਰ C ਰੰਗਾ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PC ਮੈਹਲੋਨੋਬਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਬਾਏ MOSPI, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PV ਸੁਖੰਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਨੇ? KK ਵੈਨੂਗੋਪਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? KK ਵੈਨੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੇਜ਼ਾਰੂਸ ਚੱਕਵੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਲਾਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਜ਼ਾਰੂਸ ਚੱਕਵੇਰਾ। ਮਲਾਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਲੋਂਗਵੇ, ਕਰੰਸੀ ਕੁਆਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਆਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੁਰਨੀ ਜੋਹਨਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦਾ। ਰੀਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰੈਕਜੈਵਿਕ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰੈਕਜੈਵਿਕ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾਡਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੋਪਿੰਗ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਨਾਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਡਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਡਾ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੂੰ ਨਾਡਾ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਵਿਗੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਜੇਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ICICI ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿਗੀ ਮਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੁਤੀਹਾ
मुरलीधरन ਜਿਹੜੇ कि श्रीलंका तो बिलोंग करते हैं, इन्हों मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी नामित किया गया। मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी नामित किया गया। रविंद्र जडेजा नूं इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी नामित किया गया। नैक्सट करनाटका चीफ मिनिस्टर, करनाटका के चीफ मिनिस्टर दोबारा जो कि कौन ने, YS येदुरप्पा। इन्होंने स्किल कनैक्ट फोरम, स्किल कनैक्ट फोरम एक पोर्टल लॉन्च किया स्किल्ड वर्करस के लिए, स्किल्ड वर्करस के लिए स्किल कनैक्ट फोरम एक पोर्टल लॉन्च किया। नैक्सट फॉर्मर जर्मनी फुटबॉलर, जर्मनी के फुटबॉलर मैरियो गोमेज द्वारा रिटायरमेंट अनाउंस की गई। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु साइंड एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने की करा, वर्ल्ड बैंक के नाल एग्रीमेंट साइन किया $250 मिलियन का। किस दे लई, दो स्कीम्स के लिए बेसिकली 200 मिलियन दिता गया तमिलनाडु हाउसिंग सैक्टर स्ट्रैंथनिंग प्रोग्राम के लिए और 50 मिलियन दिता गया तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट के लिए। नैक्सट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने की करा, लॉन्च की जगन्ना कॉलोनी स्कीम। जगन्ना कॉलोनी स्कीम नूं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके अंडर 3 मिलियन हाउसिस गरीब लोगों को प्रोवाइडेड किए जाएंगे, पुअर पीपल नूं। बेसिकली हाउसिंग फॉर ऑल द पुअर, हाउसिंग फॉर ऑल द पुअर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया सी इन्हां द्वारा। आई थिंक जनवरी फैबररी के विच इसनूं लॉन्च किया गया सी, उसके अंडर इस स्कीम नूं लॉन्च किया गया जगन्ना कॉलोनी स्कीम। नैक्सट एक MOU साइन किया गया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए ओखला दे विच एक एग्रीमेंट साइन किया गया साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का NTPC और इंडियन ऑयल के नाल, NTPC और इंडियन ऑयल के नाल यह एग्रीमेंट साइन किया गया। महाराष्ट्र ने लॉन्च की वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल, महाराष्ट्र द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल लॉन्च किया गया, जिस बेसिकली 16.62 करोड़ लोगों का यह ट्रायल किया जाएगा अंडर प्रोजैक्ट नेम्ड प्लैटिना प्रोजैक्ट के अंडर इसनूं किया जाएगा। अच्छा NTPC का कल मैंने हैडकुआटर पूछा सी न्यू दिल्ली के विच और चेयरमैन पूछे सी गुरदीप सिंह ने। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में आंसर आए थे ठीक से। नैक्सट है यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने, इन्होंने सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का फाउंडेशन स्टोन रखा सी रामपुर उत्तर प्रदेश दे विच लोकां नूं डिजिटली स्किल्ड करन दे लई अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंडर इसनूं रखा गया। नैक्सट है MP मध्य प्रदेश ने की किया हमारा घर हमारा विद्यालय इस स्कीम नूं लॉन्च किया, जिसके अंडर क्लासिस प्रोवाइड किए जाएंगे 10 तो लैके 1 बजे तक एक रैगूलर बेसिस के उत्ते क्लासिस प्रोवाइड की जाएंगी। नैक्सट है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर एक स्कीम लॉन्च की गई PMFME प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसैस एंटरप्राइजेस। इस स्कीम नूं फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल द्वारा बादल विलेज बठिंडा तो 5 साल के लिए लॉन्च किया गया। बादल विलेज बठिंडा पंजाब तो हरसिमरत कौर बादल बठिंडा पंजाब तो ही लोक सभा MP ने फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर ने इन्हां द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके अंडर 9 लाख स्किल्ड और सैमी स्किल्ड एम्पलॉयमेंट जनरेट की जाएगी और 3500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नूं जनरेट किया जाएगा। नैक्सट आप डिस्कस कर रहे हैं बर्ड सेंचुरीज। सब तो पहले महाराष्ट्र दे विच है मयानी बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र दे विच। गुजरात दे विच नल सरोवर बर्ड सेंचुरी और थोल बर्ड सेंचुरी, ये इंपोर्टेंट रहेगी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। बिहार दे विच कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी और विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। अच्छा इस तो याद आया कि पंजाब नूं इंदस रिवर डॉल्फिन नूं पंजाब ने अपना स्टेट एनीमल डिक्लेयर किया सी। कर्नाटका रंगनथीतू बर्ड सेंचुरी कित्थे है कर्नाटका दे विच। आंध्र प्रदेश की बर्ड सेंचुरीज इंपोर्टेंट रहनगियां कोलेरू और नैलापट्टू, काफ़ी इंपोर्टेंट रहनगियां, एग्जाम में पूछी जा चुकी ने।
आंध्र प्रदेश दे विच कोलेरू बर्ड सेंचुरी और नैलापट्टू बर्ड सेंचुरी। ठीक है जी, सारी बर्ड सेंचुरीज याद रखनियां ने। नैक्सट आप चलते हैं अज दे फर्स्ट क्वेश्चन दे वल। विच डे इज़ ऑबजर्वड एज नैशनल पोस्टल वर्कर डे। नैशनल पोस्टल वर्कर डे किस दिन ऑबजर्व किया गया? नैशनल पोस्टल वर्कर डे 1 जुलाई नूं ऑबजर्व किया गया। 1 जुलाई नूं नैशनल पोस्टल वर्कर्स डे ऑबजर्व किया गया। इस तो इलावा नैशनल सीए डे, नैशनल सीए डे भी ऑबजर्व किया गया 1 जुलाई नूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की गल करते हैं, कॉमर्स तो बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सपना होंगे सीए बनना, तो उस दिन ऑबजर्व किया जाता है नैशनल सीए डे 1 जुलाई नूं। इस तो इलावा आप बाकी डेज काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल 27 जून नूं MSME डे ऑबजर्व किया गया। 27 जून नूं MSME डे ऑबजर्व किया गया। इस तो इलावा 29 जून नूं किहड़ा दिन ऑबजर्व किया गया? स्टैटिस्टिक्स डे, जिसदे विच आपां PC मैहलोनोबिस की गल की सी। हुण भी आप डिस्कस करके हटे कि रिवीजन दे विच एक अवार्ड PC मैहलोनोबिस का, PC मैहलोनोबिस इन्हां दे नाम दे उत्ते स्टैटिस्टिक्स डे इन्हां नूं ऑनर करन दे लई नैशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑबजर्व किया गया। 30 जून नूं इंटरनैशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ऑबजर्व किया गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर इनॉग्रेटेड कंटिन्यूस गैल्वनाइज्ड रेबड़ प्रोडक्शन फैसिलिटी एट मंडी गोबिंदगढ़ इन पंजाब। पंजाब दे विच गोबिंदगढ़ सिटी है, उत्थे मंडी गोबिंदगढ़ दे विच मंडी गोबिंदगढ़ है, वैसे मंडी गोबिंदगढ़ दे विच एक फैसिलिटी इंस्टॉल की गई कंटिन्यूस गैल्वनाइज्ड रेबाड़ प्रोडक्शन। बेसिकली गैल्वनाइज्ड स्टील की गल करिए, इन्हां चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए एक फैक्ट्री कह सकते हैं इंस्टॉल की गई। किन्हां द्वारा इनॉग्रेट की गई है? धर्मेंद्र प्रधान पैट्रोलीयम एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर ने इन्हां द्वारा इसनूं इनॉग्रेशन की गई। इस तो इलावा इन्हां लवे स्टील मिनिस्ट्री है और राज्य सभा MP ने मध्य प्रदेश तो। धर्मेंद्र प्रधान राज्य सभा MP ने मध्य प्रदेश तो। ठीक है जी। इस तो इलावा प्रकाश जावड़ेकर की गल करिए, प्रकाश जावड़ेकर लवे मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, प्रकाश जावड़ेकर लवे। इस तो इलावा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी प्रकाश जावड़ेकर लवे है। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री प्रकाश जावड़ेकर लवे है। राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो राज्य सभा MP ने। पीयूष गोयल ने रेलवे मिनिस्टर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर ने यह भी राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो। थनवर चंद गहलोत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने थनवर चंद गहलोत, और यह भी राज्य सभा MP ने मध्य प्रदेश तो। अच्छा, इन्हां द्वारा एक इनॉग्रेशन की गई सी। बेसिकली एक वर्चुअल कैंप लगाया गया सी पंजाब दे विच ही। पंजाब तो याद आया कि पंजाब दे विच ही एक कैंप लगाया गया सी, वर्चुअल कैंप एड्स और डिफरेंट फैसिलिटीज़ नूं प्रोवाइड करवाउण दे लई। अगर आप गल करिए कित्थे लगाया गया सी? फिरोजपुर पंजाब दे विच। किन्हां द्वारा? थनवर चंद गहलोत द्वारा वर्चुअल कैंप लगाया गया सी। मुख्तार अब्बास नकवी की गल करिए, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने राज्य सभा MP ने झारखंड तो राज्य सभा MP ने। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की कराया? अनाउंस किया टू एक्सटेंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। पहले इसनूं 3 मंथ के लिए ऑर्गेनाइज किया गया, हुण उस तो बाद इसका टेन्योर इंक्रीज़ कर दिता गया। इसनूं कहा गया कि नवंबर 2020 तक। बेसिकली इसनूं 21 मई नूं शुरू किया गया सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसका जो टेन्योर है इसनूं नवंबर 2020 तक इंक्रीज़ किया गया। नवंबर 2020 तक इंक्रीज़ किया गया। डेट इंपोर्टेंट रहेगी। एग्जाम के जिहड़े अगर आप गल करिए PCS लैवल का जिहड़ा एग्जाम होएगा, इन्हां एग्जाम के डेट जरूर इंपोर्टेंट बनती है। या PPSC लैवल के एग्जाम के भी 21 मई यानी कि एक स्कीम पूछी जाती है कि यह स्कीम नूं किस दिन लॉन्च किया गया। 21 मई 2020 नूं इसनूं लॉन्च किया गया सी। सिमिलरली एक स्कीम आप हुण डिस्कस की सी जिहड़ी
हरसिमरत कौर बादल द्वारा इनोग्रेट की गई है। कित्थों की गई है? बठिंडा पंजाब तो ही इनोग्रेट की गई है। वो भी याद रखनी है, PMFME। नेक्स्ट है, विच कंट्री कैंसल्ड द 2021 एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कॉरपोरेशन फोरम। एक मीटिंग कह सकते हैं, एक समिट कह सकते हैं। मीटिंग या समिट हैल्ड किया जाना सी 2021 का एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कॉरपोरेशन का, एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कॉरपोरेशन यानी कि एपैक का एक समिट, एक फोरम, एक मीटिंग कह सकते हैं हैल्ड की जानी सी। बेसिकली इसनूं हैल्ड किया जाना सी ऑकलैंड दे विच, हैल्ड किया जाना सी, यानी कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड दे विच हैल्ड किया जाना सी। इसनूं कैंसल किया गया ड्यू टू कोविड-19 के दौरान सिचुएशन जी क्रिटिकल है, इस दे लई न्यूजीलैंड के विच हैल्ड किया जाना एपैक समिट इसनूं कैंसल किया गया। अच्छा, इस तो इलावा कुछ होर न्यूज़ डिस्कस कर ले। सब तो पहले इसके फैक्ट्स डिस्कस कर लेने। एपैक की गल करते हैं। एपैक का जिहड़ा हैडकुआटर है, एपैक का हैडकुआटर कित्थे है? सिंगापुर दे विच। एपैक का हैडकुआटर है सिंगापुर दे विच। इस तो इलावा इसनूं बनाया गया सी 1989 दे विच। हैडकुआटर सिंगापुर दे विच बनाया गया सी 1989 दे विच। इस दे हैड ने रेबेका फातिमा नाम याद रख लेंगे, थोड़ा लेंथी नेम इन्हां दा। रेबेका फातिमा एस्टा मारिया। और इस दे बारे ये भी याद रखना है कि एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कॉरपोरेशन दे विच इंडिया मैंबर नहीं है, इंडिया इज़ द मैंबर नहीं है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए, न्यूजीलैंड द्वारा अनाउंस किया गया सी कि कोविड-19 तो पूरे तरीके दे नाल फ्री हो चुकी है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर द्वारा यह अनाउंसमेंट की गई सी, और प्राइम मिनिस्टर के फीमेल ने कुछ नाम सीगा जैकिंडा एंडर्न इन्हां दा नाम है। USA प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, और USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਬਿਡਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਆ, व्लादिमीर पुतीन इत्थे दे प्रेजिडेंट ने, और व्लादिमीर पुतीन प्रेजिडेंट द्वारा नॉर्थ कोरियन लीडर जिम कॉन्ग उन नूं एक प्रेजिडेंशियल मैडल दिता गया सी वर्ल्ड वॉर 2 दे लई। वर्ल्ड वॉर 2 प्रेजिडेंशियल मैडल दिता गया, प्रेजिडेंशियल मैडल नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 मैडल दिता गया सी। वर्ल्ड वॉर 2 मैडल व्लादिमीर पुतीन द्वारा दिता गया सी। रिसेंटली इन्होंने विक्ट्री डे परेड का 75th एनिवर्सरी मनाई है। इंडिया वालों 75% कह सकते हैं, 75 मिलटरी, अगर आप गल करिए तीनों आर्मीज़, तीनों अपनी फोर्सिस के विचों 25 यानी कि 75 ऑफिसर्स गए थे। इस तो इलावा राजनाथ सिंह गए थे रशिया के विच, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करिए, अच्छा रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी रिसेंटली अपॉइंटेड ने, इन्हों का नाम कमेंट बॉक्स के दसने। रशिया के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंटेड ने, इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर द्वारा रिजाइन किया गया सी पूरी कैबिनेट के नाल। उस तो बाद इत्थे नवे प्राइम मिनिस्टर चूज किए गए सी, उन्हों का नाम दसने। नैक्सट है, विद विच कंट्री इंडिया साइंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर LPG बिजनेस। LPG बिजनेस के लिए इंडिया ने 50-50 एक 50-50 पार्टनरशिप दे नाल एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। किहड़ी कंट्री दे नाल इसनूं किया गया? बांग्लादेश दे नाल। इस एग्रीमेंट नूं किहड़ी कंट्री दे नाल साइन किया गया? बांग्लादेश दे नाल। बेसिकली बांग्लादेश दे विच यह कंपनी ओपन की जाएगी, ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, याद रखना है। शेख हसीना इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर ने, शेख हसीना इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर ने, और इन्हां द्वारा अगर आप गल करिए बांग्लादेश के ईडन गार्डन कोलकाता दे विच एक मैच हैल्ड किया गया सी बांग्लादेश के नाल, डे नाइट टेस्ट मैच या कह सकते हैं पिंक बॉल टेस्ट मैच, जिसनूं इंडिया द्वारा जित लिया गया सी। डेनमार्क की गल करिए, रिसेंटली इंडिया ने पावर सैक्टर दे विच डेनमार्क के नाल समझौता किया सी, एग्रीमेंट साइन किया सी। श्रीलंका के अगर आप गल करते हैं श्रीलंका की, तो गोटाबाया राजपक्षा इत्थे दे हैड ने। इस तो इलावा महेंद्र राजपक्षा प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट दोनों कह सकते हैं कज़न ब्रदर्स ने। इस तो इलावा श्रीलंका की गल करिए, श्रीलंका के बारे होर कोई न्यूज़ अगर आप गल करिए, श्रीलंका नूं
FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੂਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਇਸ਼ੂ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਨੇਪਾਲ ਈਅਰ 2020 ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟ announced a project for rehabilitation of residents of the state returning from abroad and for the overall development of the state। ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ? ਕੇਰਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਡ੍ਰੀਮ ਕੇਰਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਡ੍ਰੀਮ ਕੇਰਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ KK ਸ਼ੈਲਜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਘਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕਿੱਲ ਫੋਰਮ, ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ YS ਯਦੁਰੱਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾफ़ी ज़्यादा ਸਕੀਮਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇਤਨਮ ਨੇਸ਼ਮ, ਲਾ ਨੇਸ਼ਮ, ਨਾਡੂ ਨੇਡੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, YS ਕਾਪੂ ਨੇਸ਼ਮ, ਮੱਸਿਆਕਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸਕੀਮ, ਰਾਇਤੂ ਭਰੋਸਾ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਜਗन्नाथ ਚੇਦੋਦੂ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਕਾफ़ी ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਗन्नाथ ਚੇਦੋਦੂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਸ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ। 30 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਹਾਊਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, TS ਵੈਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਸਕੀਮਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਸੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। MP, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਸਕੀਮਸ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। UP ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਐਸੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਅਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਸਕੀਮਸ ਪੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਪਰਵਾਨ ਸਕੀਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਲਗੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਭਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਭਿਆਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ IIT, ਕਿਹੜੀ IIT becomes first to launch world ਦੀ ਫਰਸਟ ਆਨਲਾਈਨ BSc ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ। ਕਾफ़ी ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ IIT ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, BSc ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ BSc ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ BSc ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, BSc IT ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ।
इसे तरीके नाल एक BSc है प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस दी, प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस BSc डिग्री नूं प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस दे विच ऑनलाइन कर दिता गया। इस यूनिवर्सिटी द्वारा इस IIT द्वारा इसनूं ऑनलाइन किया गया। बेसिकली इसनूं अनाउंसमेंट की गई HRD मिनिस्टर द्वारा। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने अनाउंसमेंट उन्होंने द्वारा की गई। और किहड़ी यूनिवर्सिटी द्वारा इसनूं किया गया? IIT मद्रास द्वारा। किन्ना द्वारा यह किया गया? IIT मद्रास द्वारा। काफ़ी यूनीक और इंटरस्टिंग न्यूज़ है, याद रखनी है। इस तो इलावा IIT मद्रास ने ही चिल्का लेक उड़ीसा दे विच इरुवेरी डॉल्फिन्स के नंबर नूं ट्रिपल करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया सी। IIT बॉम्बे ने एक डिजिटल स्टैथोस्कोप डेवलप किया जिसका नाम रखा सीगा आईस सिंक। IIT गांधीनगर द्वारा प्रोजैक्ट आईसैक लॉन्च किया गया सी। प्रोजैक्ट आईसैक IIT गांधीनगर द्वारा ही लॉन्च किया गया सी। IIT रोपड़ द्वारा वार्ड बोट रोबोट डेवलप किया गया सी IIT रोपड़ द्वारा। अच्छा, एक न्यूज़ होर डिस्कस कर लें IIT गांधीनगर के रिलेटेड। IIT गांधीनगर ने रिसेंटली की डेवलप किया है? IIT गांधीनगर ने एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस टैक्नोलॉजी नूं डेवलप किया है। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस टूल डेवलप किया है जिहड़ा कि एक्सरे दे नाल कोविड-19 अगर आप चैसट एक्सरे तो कोविड-19 नूं डिटेक्ट कर सकते हैं। चैसट एक्सरे तो कोविड-19 नूं डिटेक्ट करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस टूल डेवलप किया गया IIT गांधीनगर द्वारा। ठीक है जी। IIT मंडी द्वारा डेवलप की गई सी एक रैंडम असेस मैमरी, एक रैम डेवलप की गई IIT मंडी द्वारा, एक हाई स्पीड मैगनेटिक रैंडम असेस मैमरी। इस तो इलावा IIT मंडी द्वारा एक इन्फ्यूजन टैक्नोलॉजी नूं डेवलप किया गया हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स के लिए, ताकि उन्होंने बेसिकली मार्जिनल फार्मर्स के लिए, ताकि उन्होंने इनकम नूं इंक्रीज़ किया जा सके। Which of the following institute has launched a new scheme called Accelerate विज्ञान? ये भी काफ़ी इंटरस्टिंग न्यूज़ है कि Accelerate विज्ञान एक स्कीम लॉन्च की गई किस दे लई बेसिकली प्रोवाइड करने लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इंटर्नशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप्स के लिए पूरी कंट्री दे विच इंटर्नशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स कह सकते हैं स्टार्ट करने के लिए पूरी कंट्री दे विच स्कीम लॉन्च किया गया एसिलरेट विज्ञान। ये किहड़े इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया? इसनूं लॉन्च किया गया सर्ब द्वारा। सर्ब की चीज़ है? तुहानूं याद होएगा आपां एक अवार्ड डिस्कस किया सी सर्ब एक्सीलेंस अवार्ड 2020। एंड तुसीं कमेंट बॉक्स में आंसर दो सर्ब एक्सीलेंस अवार्ड की है। इस तो इलावा मैं दसदा सॉरी किसनूं दिता सी सर्ब एक्सीलेंस अवार्ड। सर्ब की है? सर्ब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस अगर आप इसकी फुल फॉर्म डिस्कस करिए साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इन्हां द्वारा एसिलरेट विज्ञान नाम की स्कीम लॉन्च की गई। किन्हां द्वारा लॉन्च की गई? सर्ब द्वारा। ठीक है जी। सर्ब एक्सीलेंस अवार्ड किन्हां दिता गया सी? डॉक्टर नीति कुमार नूं सर्ब एक्सीलेंस अवार्ड दिता गया सी। ये याद रखना है। इस तो इलावा CISF सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स इन्हां द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी CISF द्वारा। बेसिकली जिसके डायरैक्टर जनरल ने राजेश रंजन। CISR सेंट्रल इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म CISR सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीज रिसर्च। इस द्वारा भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी इस दे द्वारा। DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इस द्वारा की किया गया सी अनन्या नाम का एक जैल डेवलप किया गया सी। अनन्या नाम का एक वाटर डिसइनफेक्टेंट स्प्रे डेवलप की गई सी डाइट द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री डेवलप्ड उद्यान रजिस्ट्रेशन पोर्टल। एक मिनिस्ट्री द्वारा उद्यान रजिस्ट्रेशन पोर्टल बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए इस पोर्टल को डेवलप किया गया। किन्ना दी रजिस्ट्रेशन के लिए? MSME दी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी कि इसका आंसर की होएगा? फोर्थ ऑप्शन। MSME मिनिस्ट्री ने एक डेवलप की एप्लीकेशन
एक पोर्टल कह सकते हैं उद्यान रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिस दे उत्ते MSMEs नूं रजिस्ट्रेशन की जाएगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। कोविड-19 के दौरान इस सिचुएशन दे विच इस पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया ताकि वर्क है जिहड़ा वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के काम नूं स्टार्ट किया जा सके। MSME मिनिस्ट्री कौन देख रहे हैं? नितिन गडकरी, नितिन जयराम गडकरी MSME मिनिस्ट्री देख रहे हैं नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। इस तो इलावा ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के भी हैड ने। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री S जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। राज्य सभा MP ने गुजरात तो। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने। राज्य सभा MP ने कर्नाटका तो राज्य सभा MP ने। इस तो इलावा एजुकेशन मिनिस्ट्री की गल करिए HRD मिनिस्ट्री, यानी कि एजुकेशन HRD मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशंक। हुणे आपां इन्हां दा नाम डिस्कस करके हटे हाँ। रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। हैल्थ मिनिस्ट्री डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर ने। हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। इस तो इलावा साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इन्हां लवे, साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है। और चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ लॉन्च ई-किसान धन एप्लीकेशन फॉर फार्मर्स। ई-किसान धन एप्लीकेशन फार्मर्स के लिए ई-किसान धन एप्लीकेशन किहड़े बैंक द्वारा लॉन्च की गई? किहड़े बैंक द्वारा ई-किसान धन एप्लीकेशन फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई? HDFC बैंक द्वारा। HDFC बैंक ने ई-किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च की। अच्छा, इस एप्लीकेशन नूं लॉन्च किया गया HDFC बैंक द्वारा। समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च किया गया सी HDFC बैंक द्वारा। इस तो इलावा हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग प्रसून जोशी द्वारा लिरिक्स दिते गए, AR रहमान द्वारा म्यूजिक दिता गया, इस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लैक्सी कैश इसनू लॉन्च किया ICICI बैंक ने। एग्जिम बैंक ने 2 कंट्रीज़ नू रिसेंटली लोन प्रोवाइड किया है। अगर आप गल करिए मलावी और निकारागुआ मलावी नू 215 मिलियन समथिंग दिता सीगा, निकारागुआ नू 20 मिलियन समथिंग। मलावी नू दिता गया सी वाटर सप्लाई के कुछ चेंजिस के लिए प्रोग्राम के लिए, और निकारागुआ नू दिता गया सी हॉस्पिटल की बिल्डिंग नू रीकनस्ट्रक्ट करने के लिए। इस तो इलावा मलावी के जोड़े डिस्कस किए हैं अज प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। मलावी के प्रेजिडेंट नवे अपॉइंट किए गए हैं। इन्हों का नाम भी याद रखना है। इन्हों का नाम की सीगा हुणे आप डिस्कस किया सी, मेरे माइंड चो स्किप कर लेज़रूस चकवेरा। यस बैंक की गल करते हैं 24.something% स्टेक इन्होंने बाय किया सीगा डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का। SBI के CEO का नाम हमेशा याद रखना है। यस बैंक के ने प्रशांत कुमार, SBI के ने रजनीश कुमार। मुंबई के हैडक्वार्टर है। यस बैंक का हैडक्वार्टर भी मुंबई के है। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN। अगर इस क्वेश्चन को आप इत्थे तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN, ये ने TS त्रिमूर्ति। पर क्वेश्चन ध्यान नाल सुनना, क्वेश्चन पूरा की है इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। बेसिकली यूनाइटेड नेशनस अगर आप गल करिए हैडक्वार्टर न्यूयॉर्क के विच है, और इत्थे जिहड़े रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए गए सी वो सी TS त्रिमूर्ति। पर जेनेवा स्विट्जरलैंड के लिए और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया वालों जेनेवा स्विट्जरलैंड के जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने और UN के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए गए, उन्होंने नाम है इंदिरा मनी पांडे। किन्होंने अपॉइंट किया गया? इंदिरा मनी पांडे नूं अपॉइंट किया गया। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा बाकी जोड़े नाम ने सारी अपॉइंटमेंट्स ने जरूरी कह सकते हैं एक इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ने। जिन्नियां भी अपॉइंटमेंट्स सीगियां सारियां मैंने ज़्यादातर 2 क्वेश्चन के डिस्कस करांगे आपां। एक ये किस तो नैक्सट क्वेश्चन सब तो पहले श्रीकांत माधव वैद्य इन्हों अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया श्रीकांत माधव वैद्य नूं। श्रीकांत माधव वैद्य नूं। संजय द्विवेदी अपॉइंट किए गए हैं डायरैक्टर जनरल। किसके डायरैक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं? यह अपॉइंट किए गए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरैक्टर जनरल अपॉइंट किए गए संजय द्विवेदी। संजय द्विवेदी। रविंदर भास्कर अपॉइंट किए गए हैं CEO सेंट्रल बोर्ड के। किसके सेंट्रल बोर्ड के? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अगर आप गल जिसनों आप सेंसर बोर्ड कह दें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अगर कोई पिक्चर बनती है तो उसको इतों सर्टिफिकेट लेना पैंदा है, उस तो बाद उस पिक्चर को रिलीज़ किया जाता है। तो इस बोर्ड के CEO अपॉइंट किए गए हैं। CEO अपॉइंट किए गए हैं रविंदर भास्कर। बेसिकली इसका हैडकुआटर मुंबई महाराष्ट्र के है। ओबवियस जी चीज़ है कि जी फिल्म इंडस्ट्री है ज़्यादातर मुंबई महाराष्ट्र के सिचुएटेड है। इस तो इलावा प्रसून जोश इसके हैड ने। इसके हैड कौन ने? प्रसून जोश। इसके चेयरमैन ने। और CEO अपॉइंट किए गए हैं रविंदर भास्कर। नेक्स्ट है हू विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल की गल करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल के जोड़े चेयरमैन ने उन्हें शशांक मनोहर। सूँ याद होएगा ICC के जी मीटिंग सी उसनों COVID-19 के कारण कैंसल किया गया। इस मीटिंग के ICC के नवे चेयरमैन चूज़ किए जाने सी। और हुण अगर मीटिंग में पोस्टपोन किया गया तो इन्हों का टैनूअर इंक्रीज़ कर दिता गया सीगा। पर हुण न्यूज़ की है कि शशांक मनोहर द्वारा रेजिग्नेशन दे दिता गया। शशांक मनोहर ने की किया? रेजिग्नेशन दे दिता है। इसलिए एडिशनल चार्ज दे दिता गया। एडिशनल चार्ज नहीं कह सकते। इमरान खवाजा बेसिकली डिप्टी चेयरमैन ने ICC दे। डिप्टी चेयरमैन ने ICC दे इन्हों हजे लई अपॉइंट कर दिता गया इमरान खवाजा जदों तक इलैक्शनस हैल्ड नहीं होंगे, यानी कि जदों तक मीटिंग हैल्ड नहीं होंगी ICC की। COVID-19 के कारण इसमें कैंसल किया गया सी, पोस्टपोन किया गया सी कहांगे। इमरान खवाजा नूं इसके चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा मनु साहने की ने ICC के CEO ने। ICC का हैडकुआटर कित्थे है? दुबई के ICC का हैडकुआटर है। निगार जौहर कौन ने? निगार जौहर बेसिकली एक अगर कह सकते हैं मेजर ने मिलटरी के आर्मी के मेजर ने। कित्थे दी आर्मी के? पाकिस्तान कंट्री के आर्मी के मेजर ने निगार जौहर। यह इन्हों का नाम एक इंपोर्टेंट बनया है। बेसिकली फीमेल ने इन्हों का नाम जो इंपोर्टेंट बनया क्यों बनया? क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल लैफ्टिनेंट जनरल बने ने पाकिस्तान आर्मी के। फर्स्ट फीमेल लैफ्टिनेंट जनरल बने ने पाकिस्तान आर्मी के। निगार जौहर इन्हों अपॉइंट किया। कृतिका पांडे का नाम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन्हों कॉमनवैल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ दिता गया सी। कॉमनवैल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ दिता गया सी। पर इसके रिलेटेड भी एक इंपोर्टेंट फैक्ट है कि जदों आपने पहले डिस्कस किया सी इन्हों किहड़ी बुक के लिए किहड़े नॉवल के लिए दिता गया सी? द इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए इन्हों कॉमनवैल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ दिता गया सी फॉर एशिया रीजन। तुहानूं याद होएगा आप डिस्कस किया सी फॉर एशिया रीजन। पर हुण इन्होंने जिहड़ा यह प्राइज़ है यह पूरे उसदे विच दे दिता गया, यानी कि ओवरऑल ग्लोबली इन्होंने यह प्राइज़ जित लिया। कॉमनवैल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ कला एशिया रीजन के लिए नहीं, हुण इन्होंने पूरा जित लिया। बेसिकली इस तरीके किस तरीके नाल हुंदा, एक राउंड बेसिस के उत्ते काम चल रहा होंदा है कि एशिया रीजन के विच, अफ्रीका रीजन के विच इस तरीके नाल उपर चलते जाते हैं और सब तो उपर एक ग्लोबल अवार्ड दिता जाता है। तो यह ग्लोबल अवार्ड भी कृतिका पांडे ने ही जित लिया, कॉमनवैल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़। कि यह फर्स्ट इंडियन ने जिन्होंने यह प्राइज़ जितया? नहीं, ये सैकेंड इंडियन बने ने। 2016 के भी एक इंडियन ने यह प्राइज़ जितया सीगा, उन्होंने नाम सी प्रशार कुलकर्णी द्वारा 2016 के भी यह प्राइज़ जितया गया। आज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।